हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान एहसान और आज हम अवेलेबल हैं Gatorade presents Pakistan Sports Awards में, an initiative by Agent Huck that in fact acknowledges sports across the board, not just the very popular ones. We have a number of sporting personalities here, most of them from Pakistan who won medals and in fact represented us globally. I'm really looking forward to seeing them and in fact win many awards. Stay tuned. आप होस्ट कर रहे हैं आज. What are your thoughts on Gatorade Pakistan Sports Awards? I love the idea of this award. I want to appreciate all these athletes who've been working so hard for Pakistan. Let's start with the national sports anthem, which you gave to the country. Well, how's the response been? What are your thoughts? It's been amazing. Finally, जिसकी वजह से ये anthem किया था for the Pakistan Sports Awards to recognize our superheroes, to respect the sweat. So yeah, tonight's a wonderful night. का इनिशिएटिव हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी ने लिया नहीं था. To acknowledge each and everybody who's winning something for the country. This is a huge thing. This is a huge deal. Actually, what I've noticed, we focus on a certain kind of sports, just one or two, and we just forget the other achievers, usually. So we need to talk about them, we need to celebrate, we need to bring them here in the forefront and unko awards dene chahiye. I think it's brilliant. आपका जो रैप पार्ट है, it's made a lot of waves. जो बड़े सारे गेस्ट जो यहाँ भी आए उन्होंने कहा उनको रैप पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है. I'm glad उनको पसंद आया. मेरी पूरी कोशिश यही थी, लेकिन इतना पसंद आएगा ये मुझे नहीं पता था कि people are loving it. लोग उसको अलग अलग शेयर कर रहे हैं जगहों पे और लोग ओन कर रहे हैं कि हाँ हमारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है ये, तो मीन्स अ लॉट. Great initiative because sports awards, I think they were very important and they should be the part of the whole fraternity. Ladies and gentlemen, welcome to Pakistan Sports Awards. Let's start the show with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وصروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. Good evening, ladies and gentlemen. मैं हूं फाद मुस्तफ़ा. I'm your host for tonight. आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड का दूसरा एडिशन. इस जगह आज मौजूद हर शख्स को मैं खुश आमदेद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि स्पोर्ट्स दुनिया को बदल सकता है, और वाकई
स्पोर्ट्स एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद करती है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे रेसलिंग का अखाड़ा हो, चाहे हॉकी का ट्रफ हो या फिर रंगारंग गेंदों से सजी स्नूकर टेबल हो। पाकिस्तान ने हर खेल में चैंपियंस पैदा किए हैं और उन चैंपियंस ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया है। आज उन तमाम चैंपियंस का शुक्रिया अदा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस कौम को मुत्तहिद करने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। आज हम जमा हैं हर उस एथलीट का शुक्रिया अदा करने में कि जिसने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम हमेशा बुलंद किया और अपना पसीना बहाया। इन तमाम चैंपियंस को आज पूरे पाकिस्तान की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि वी रिस्पेक्ट योर स्वेट। Everyone who tries to get lauded for the country, I respect them. I'm rooting for them, and I think everyone deserves a lot of respect. This is the first time we have something for the athletes, and they are dressing up for the awards. I think this is our awards, and it's a new, we get to style up, we get to have one night for us. I think it's a great platform and it's a great opportunity for the young ones. ये हॉकी प्लेयर के लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि हॉकी नेशनल गेम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहचाना जाता है हॉकी की वजह से। और स्पोर्ट्स अवार्ड्स में हॉकी प्लेयर्स की नॉमिनीज भी हैं, इससे बहुत खुशी। It feels amazing. It feels great to be, acknowledged on such a huge platform. I appreciate all the efforts done by your organization and association, and they're doing very well for the promotion of sports. She's a Taekwondo champion, in fact, the world's youngest athlete. So she's made Pakistan proud globally. Aisha, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ, मुझे बहुत अच्छी महसूस हो रही है। वन स्पोर्ट कंट्री बनता जा रहा है पाकिस्तान ना, तो दूसरी जो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए, स्पोर्ट्समैन को इनकरेज करने के लिए ये ज़ाहिर है कि बहुत ही अच्छा कदम है। मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली लड़की हूँ जो ओलंपिक्स में मैंने रिप्रेजेंट किया 1996 अमेरिका अटलांटा में, और पाकिस्तान की हिस्ट्री ही में मैं पहली लड़की हूँ जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए जो हैं वो मैंने जीते हैं। इंशाल्लाह ताला अब हॉकी की रिवाइवल दोबारा होगी पाकिस्तान में और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीतेगा। I'm currently Pakistan #1, so it's definitely a big honor for me to be coming here and representing Pakistan. अपने मुल्क के लिए भी जब इंसान खेलता है तो उसको दिलो जान से खेलना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है उसका नाम रोशन हो सके। I guess it's a very good initiative, and it's such events should be held regularly. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। खान का हौसला मैं वसीम की स्विंग हूँ, 92 का वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी की विन हूँ, लाला और पिंडी एक्सप्रेस का जनून जैसे बाबर की ड्राइव में सना मीर की स्पिन हूँ, इनाम बट मैं गुजरावाले की जान, अब्दुल खालिक का गोल्ड मेडल दुश्मन हैरान, बैडमिंटन वेट लिफ्टिंग के मारे मैदान में माहूर, मैं रबिया मैं औरत की पहचान। हाँ, टेगन और डॉटा वाले जाने वर्ल्ड वाइड, मैं अरसलान मैं सुमेलिस मुल्की प्राइड, आज तक जो कायम जहांगीर खान की स्ट्रीक में, जिनसे की गेम हूँ ऑलवेज ऑन पीक में, ओलंपिक्स में पाकिस्तान में अरशद नदीम, इसामुल हक में बदला टेनिस का सीन, गवाह है दुनिया हॉकी को कैसे सर किया, सोहेल और समी में हर दिल में घर किया, इज्जत कमाई स्नूकर में भी कई साल, मैं आसिफ मैं यूसुफ और मैं बिलाल, फुटबॉल टॉप पे ले जाना मैंने ठान ली, गली मुल्ला में हाजिरा खान भी, हुसैन शाह मैं बॉक्सिंग रिंग का डॉन, परवाज फैल्कन वसीम जैसे रोकेगा कौन, कबड्डी में दुश्मन का कर दिया हशर, मैं सुपर हीरो AKA कौन का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बाकी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं।
ये उन एथलीट्स के लिए है जिनको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती, जो मुल्क के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीतते हैं लेकिन इतनी फेम नहीं मिल पाती। इट्स अ गुड साइन कि आप स्पोर्ट्समैन को एनकरेज करें और स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोगों को भी जो पसे पर्दा रहे। अवार्ड्स के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आसिम अज़हर और उनके लाइव बैंड यहाँ पर आएँ और हमें कौमी तराने के लिए ज्वाइन करें। मैं चाहूँगा आप सब भी तराने के एहतराम में खड़े हों, न सिर्फ खड़े हों बल्कि अपने सीने पर हाथ रख के कौमी तराना पढ़ेंगे, सबको बताएंगे कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है। आसिम अज़हर प्लीज़। पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीं का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत बाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, सायाए खुदाए ज़ुलजलाल। हमें ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि इस मुल्क की कामयाबी और परचम की सरबुलंदी के लिए कितनी मेहनत एक एथलीट करता है। कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम भरपूर अंदाज में न सिर्फ उस एथलीट को कामयाब करें बल्कि उसकी मेहनत की भी कदर करें। कामयाबी के सफ़र में उन चैम्पियंस के माथे से टपकने वाले पसीने की कीमत तो शायद हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन उसको इज़्ज़त देना हम सब पर वाजिब है। इसलिए तो हम कहते हैं रिस्पेक्ट द स्वेट। ये नारा रिस्पेक्ट द स्वेट क्या है और इसके पीछे क्या सोच है और आज की इस महफिल को सजाने का मकसद क्या है, इस सब को बताने के लिए मैं गेटरेट पाकिस्तान से बुलाना चाहूँगा आयशा जंजुआ साहिबा को कि वो यहाँ पर आएँ और हमें कुछ बताएं। प्लीज़ आयशा जंजुआ, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आयशा जंजुआ के लिए। Assalamu alaikum everyone, and thank you all for being here. It is a great honor for PepsiCo Pakistan to once again present the Pakistan Sports Awards. Our business philosophy is doing business with purpose, and it comes to life when we play our part in the mission of recognizing and rewarding the most deserving athletes who have gone unnoticed for far too long. At a personal level, I feel immense joy to be standing here and being part of this worthy platform. Blind faith, perseverance, strict discipline, and unrelenting passion. These are few of the attributes that make up an athlete who is devoted to his game. The struggle is not just physical, but a mental one as well. Gatorade, being the only sports drinks of Pakistan, recognizes the challenges that these athletes face, and it is because of this reason that we have launched an awareness campaign with the message, respect the sweat. ये मैसेज आपको इस पूरे वेन्यू में जगह जगह नज़र आया होगा और ये मैसेज टीवी और डिजिटल के थ्रू पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम सब पाकिस्तानियों को ये एहसास दिलाएं कि हमने भी एक रोल प्ले करना है
to motivate our athletes by giving them the respect and value that they deserve, no matter which game they play and wherever they play. I hope that today's awards are not only going to recognize the winners who have made a mark of Pakistan on the globe, but are also going to give a strong message of hope and motivation to all the striving athletes who are trying to make a mark. In the end, I would just share a few words of the famous boxing legend Muhammad Ali. He once said, "If my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it." Let's nurture a nation of dreamers and achievers. Pakistan Zindabad. Thank you. Respect the Sweat is a movement which empowers athletes. आज हमारे साथ कुछ एथलीट्स होंगे जिनके बारे में हम कुछ जानेंगे और उनसे बहुत सी बातें करेंगे हमारे शो में। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जन्मे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन अच्छा, वो शौक क्रिकेट का था लेकिन आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जरा अपनी जर्नी बताइए। पहले मैं अपना क्रिकेट में था तो पता है कि क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया अपना एथलेटिक्स। उसमें मेरा जो इवेंट है वो जेवलिन थ्रो है। उसमें मैं आया, अपना मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से अभी 20 तक पाकिस्तान चैम्पियन हूँ। और मेरे जो 2015 से 20 में जो इंटरनेशनल मेडल हैं वो मेरे पास 5 हैं। क्या जिसमें साउथ एशियन गेम्स 2016 में हुई थी इंडिया गुवाहाटी में। उस वक्त मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद मैंने जूनियर खेली अंडर 20 एशियन चैम्पियनशिप, वो वियतनाम में हुई थी, उधर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वंडरफुल। उसके बाद अपना अजरबैजान बाकू में इस्लामी गेम्स हुई थी। अच्छा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल हासिल किया। अभी जो नेपाल काठमांडू में जो साउथ एशियन गेम्स हुई थी 2019 में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी किया, गोल्ड भी जीता। और जो साउथ एशियन गेम्स का रिकॉर्ड था वो इंडिया के लड़के का था, उन्होंने उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। विच इज़ अमेजिंग, वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बहुत आपको मुबारक हो एंड ऑल द लक टू यू। मुझे बताइए जो अवार्ड्स हो रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह ये इतना बड़ा मेला सजा हुआ है। जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स हीरो हैं उनको इधर बुलाया है और इतनी इज्जत दे रहे हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स वाज होते रहें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ज़बरदस्त जनाब, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन कर सकता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे? फरादी गेम्स का पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा एथलीट कौन है? कोर्स इनाम भट्ट। क्या बात है, हाथ सुटो। वेरी गुड, जिंदाबाद। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जन्मे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन। अच्छा, मुझे बताइए जो अवार्ड्स हो रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? It's a very, very good initiative for the development of sports in Pakistan, which is very lacking. हम देखते हैं cricket, everybody knows about cricket, but nobody knows about other sports. So Pakistan Sports Awards, it's the first platform जो दूसरे sports को भी लोगों के सामने लेकर आ रहा है. We had one in the first Pakistan Sports Awards in 2019, and now this is the second Pakistan Sports Award. And this is a really, really good initiative, and I'll really congratulate the organizers. अच्छा, ये बताइए, हाँ ये वैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में किसी भी स्पोर्ट्स में पहली बार किसने कोई चैंपियनशिप जीती थी? I guess it's the start of the history of sports. Well, yes, quite ancient. It was Hashim Khan who won in squash British Championship in 1951. 51, yes, got it right. Wonderful यार, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि इस तरह की नॉलेज जो है बहुत कम लोगों को है। हम लोग naturally we know more about a lot of other stuff, but sports is so important in your life. Do you think कि स्कूल के निसाब का हिस्सा होना चाहिए स्पोर्ट्स को या नहीं? डेफिनेटली इट शुड बी, क्योंकि आपको हिस्ट्री के साथ साथ ये भी लोगों को बूस्ट मिलेगा कि उन्होंने भी स्पोर्ट्स करना है। व्हेन दे गेट टू नो कि अच्छा पाकिस्तान ने इतने लेवल पे पहले पाकिस्तानियों ने मेडल लिया हुआ है, सो दे वुड थिंक कि हम क्यों नहीं कर सकते, वी कैन आल्सो डू इट, सो दे वुड आल्सो स्टार्ट गेट इनटू स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो वी शुड सेलिब्रेट द यंगर जनरेशन, द किड्स, they should be doing more sports. It's very, very healthy, very important.
पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स की तकरीब की ख़ास बात यह है, आज इस हॉल में हर स्पोर्ट्स का खिलाड़ी एक दूसरे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हमारे रेसलिंग के सुपरस्टार्स भी हैं, कराटे के चैम्पियंस भी हैं, ट्रैक एंड फील्ड के चीते भी हैं और क्रिकेट के स्टार्स भी हैं। चलते हैं अवार्ड के पहले सेट की तरफ। इसके लिए मैं दावत दूंगा पाकिस्तान के कुछ सुपरस्टार्स को, जिनसे यहाँ पर हम थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। बहुत सारी तालियों में पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और फास्ट बॉलर द वन एंड ओनली अजहर अली एंड वहाब रियाज। माशाल्लाह, फिटनेस का जो इंसान इतना ज़्यादा ख्याल रखता हो, वो अगर रेस्टोरेंट्स की चेन भी खोल ले तो कैसा महसूस होता है उसको? बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा स्मार्ट लोग जो है ना वो आजकल शो होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अभी बैक स्टेज मुझे बता रहे थे कि मैं जाता था एक जगह स्टेक्स खाने के लिए और वेट क्योंकि ज़्यादा करना पड़ता था, तो मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं अपना ही एक रेस्टोरेंट ले लेता हूँ, उसकी फ्रेंचाइज ले लेता हूँ और उसके बाद वहाँ पे आसानी होगी खाने में। तो इतना शानदार तो दिमाग हमारे बिज़नेस माशाल्लाह ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। अजहर भाई, आपसे बात करूँगा, मैं किसी भी टूर के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आज सिर्फ इस बारे में कि जब लड़कियां मिलती हैं, बाहर के टूर्स में आप जाते हैं, जाहिर सी बात नहीं, ऐसे सुनने की क्या बात है, लड़कियां मिलती हैं। भाभी यहाँ पर ही है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं ये इसीलिए दोबारा सुनना चाह रहा था कि यही कह रहे क्या भाभी ने सुन लिया पहली बार में, ये कंफर्म है। अच्छा, बाहर फैंस भी होते हैं, जाहिर सी बात है, तो देखते तो हैं फैंस ना आपको, हम या वो दोनों। तो जब दोनों देखते हैं तो कैसे नज़र बचा के भाभी से, अगर कोई अच्छा लगे इंसान को तो देखे कैसे, ये क्या ट्रिक क्या होनी चाहिए इसके बारे में? नहीं, भाभी कहाँ है, मैं जरा चाहता हूँ इसमें नजर चुराने, हाथ उठा ले। ये रही भाभी। भाभी ये जवाब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें नजर चुराने वाली क्या बात है? मतलब कुछ छुपा नहीं होना चाहिए ना। आपका पार्टनर है फॉर लाइफ, ही शी शुड नो एवरीथिंग। शी शुड नो कि आप किसको देख रहे हैं। अच्छा वहाब, आप जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे नज़र चुरा के आप देखते हैं? इसके लिए मुश्किल है। नहीं, मैं साफ कहता हूँ, ये अल्लाह ताला की कुदरत देखो। वाह क्या बात है, अल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, जब फील्ड पे झगड़े होते हैं प्लेयर्स के, अक्सर झगड़े होते हैं और आप काफ़ी स्लेजिंग भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ इस तरह का होता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, लेट्स हैव ये देखिए। ये तो अभी रिसेंट टूर पे हुआ मेरे साथ। और फिर फैंस जब ताली भी बजा रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग सारे दोस्त भी हैं, जाहिर सी बात है, टीम में साथ खेलते भी हैं, तो ये इसके बाद फिर क्या होता है ड्रेसिंग रूम में जाके? हम लोग होटल में थे उधर दुबई में। सबसे अच्छी चीज़ अहमद की ये थी कि इस वाक़े के बाद मेरी फैमिली आई हुई थी, मेरे वालिद साहब थे, मेरी अम्मी थी, तो हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे। वो आया है, सीधा मेरे अम्मी अब्बू से मिला है, उनके पास बैठा है, उनसे बात की, मैं उसके साथ ही था। सो वो एक ऐसी चीज़ थी कि जो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो होता है वो ग्राउंड में होता है और हीट ऑफ द मोमेंट होता है। बिल्कुल। और बाहर हम लोग दोस्त हैं और भाइयों की तरह ज़्यादा टाइम वक्त हम लोग इकट्ठे गुजारते हैं, फैमिली से ज़्यादा हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर था उसकी तरफ से। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस बात पे, एब्सोल्युटली। हम बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त अपने अवार्ड्स की शुरुआत कर रहे हैं। एथलीट की कामयाबियों का सफ़र एक पहले कदम से शुरू होता है। वो पहला कदम जो एथलीट के इमर्जिंग स्टार से चैंपियन बनने तक का सफ़र का आगाज़ है। और आज के पहले 2 अवार्ड्स भी उन्हीं इमर्जिंग स्टार्स के लिए हैं जिन्होंने शानदार अंदाज में करियर में कामयाबियों की जानिब पहला कदम रखा। और ये पहला अवार्ड है इमर्जिंग स्टार्स ऑफ द ईयर फीमेल का। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज प्लीज। इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, आमना फयाज, अरूप शाह, Aisha Ayaz, Hania Minhas, Malak Faisal, Sahib Asra, Selina Khwaja, Suha Hirani। इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, अब आप नाम अनाउंस करेंगे। आमना फयाज। I'm just really grateful to Pakistan Sports Award for hosting this event and inviting me over. It's a big honor to be recognized for my efforts, my achievements at a platform like this. Big thanks to my parents, my mom, she's here, my department, Army, who has always been there for me. Thank you. Thank you so much, Amna. God bless. अच्छा, 3 साल पहले 2013 में जब आपने अपना पहला अवार्ड जीता, तो उस वक्त आपको लगता था कि ये मेरा पहला अवार्ड है,
अगले अवार्ड की जाने बढ़ते हैं और वो है इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर मेल. लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज. Emerging Star of the Year, Male, Ehsan Ramzan, Haider Ali, Hamza Khan, Huzaifa Ibrahim, Irfan Ahmed, Naseem Shah, Usman Wazir. Emerging Star of the Year male goes to Haider Ali. इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है. थैंक्स फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट अवार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग दिस कैटेगरी दिस ईयर. मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह उनकी पूरी उम्मीदों पर उतरूँगा. अब आप लोगों के साथ ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक और पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमाल की ओपनिंग उनकी पार्टनरशिप्स रही और बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हैं. प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली इमामुल हक. अगला अवार्ड बहुत ज़्यादा ही ख़ास है क्योंकि किसी भी एथलीट को चैंपियन बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल मरहलों से वो गुजरते हैं. घंटों ट्रेनिंग करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं और सारी मुश्किलों को पार करके वो एथलीट बनते हैं. लेकिन एक ऐसा आज अवार्ड है, एक ऐसी कैटेगरी है जो कि स्पेशल एबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की कैटेगरी है. साल 2019 में अबू धाबी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स ने 62 मेडल जीते. मैं चाहता हूँ उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है. हमारे सबसे लाली परचम को बुलंद किया उन्होंने. आइए देखते हैं नॉमिनेशन स्पेशल एबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के. Special Abilities Sports Person of the Year, Ammar Shahid, Asif Abbasi, Farzana Rahmat, Haider Ali, Imran Arif, It's Haider Ali. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ स्पोर्ट्स अवार्ड मैनेजमेंट टीम का कि जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया. पाकिस्तान जिंदाबाद. क्या बात. अगले अवार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी मौजूदगी के बगैर किसी भी खेल में कोई रंग नहीं बनता. एक अच्छा कमेंटेटर इस अंदाज से एक्शन को बयान करता है कि सामाईन और नाजरीन घर बैठे खुद बराह रास्त उस एक्शन का हिस्सा लगने लगते हैं. इस साल के बेहतरीन कमेंटेटर्स कौन हैं, आइए देखते हैं नॉमिनीज. Commentator of the Year, Bazid Khan, Fakhre Alam, Marina Iqbal, Sikandar Bakht, Tariq Saeed. Best commentator of the year, it's Tariq Saeed. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने. मैं सुपर हीरो AKA कौम का फख्र. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ऑर्गेनाइजर्स का, कि आफतों का ज़माना है उसमें इतनी अच्छी महफिल सजा दी सबको बुला के. और ये जो अवार्ड है, ये जो एजाज़ है, मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सामीन, नाजरीन, ये उन्हीं के नाम करते हैं. बहुत 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 सारी तालियां होनी चाहिए सर के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अवार्ड के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करते हैं और जिक्र करते हैं उस शोबे का जिसके बगैर अक्सर खिलाड़ियों की कारकर्दगी और फतूहात रायगां रह जाती, नज़रअंदाज हो जाती हैं.
मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मीडिया की। लेकिन इससे पहले कि मैं नॉमिनीज आपको दिखाऊं, मैं दो ऐसी खवातीन को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की उन्होंने, और हमारा परचम बुलंद किया, इतना नाम रोशन किया। मुझे लगता है बहुत कम ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने इतना नाम रोशन किया होगा। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ वेलकम कुलसूम हज़ारा और नरगिस हज़ारा। मैं थोड़े से आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। आप कराटे माशाल्लाह जानती हैं, इतना नाम आपने रोशन किया पाकिस्तान का, तो जब लड़का कोई छेड़े या कोई ऐसा सोच भी ले जिसको पता हो कि आगे से दो पड़ जानी है, तो ये कैसा रहता था, किस तरीके से हैंडल करती थी आप? जब मैं क्लब जाती थी वहाँ पे सारे लड़के होते थे, इवन वो बहुत तंग करते थे कि लड़की को देखो कराटे करने आई है। आई होप कि शायद नरगिस के साथ ऐसा नहीं हुआ। नरगिस बता। मेरे साथ एक दफ़ा इंसिडेंट ऐसे हुआ कि एक दफ़ा किसी ने गलती कर ली ऐसी? ज़्यादा होते रहते हैं, एक दफ़ा का मैं बताऊंगी कि घर में एक दफ़ा एक लड़के ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा उन्होंने नॉक की। घर में मेरे भाई वगैरह बैठे हुए थे। मैंने कहा आप रुके, मैं जाऊंगी देखूंगी कौन है तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा ये क्या आप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए इस तरह। तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उनको कहा कि पहले आदाब सीखो फिर बाद में इस तरह करो। क्या बात है भाई। तो दरवाज़ा इनका जब भी आप जाएं आहिस्ता से ज़रा नॉक करें, क्योंकि थप्पड़ भी पड़ सकता है। लेकिन बहुत खुशी होती है जब आपको इस तरीके से हम देखते हैं, थप्पड़ मारते हुए नहीं मेडल जीतते हुए, कामयाब होते हुए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए। हम अपनी कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कौन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नॉमिनेशंस। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फैजान लखानी, नताशा राहील, शाहिद हाशमी, सुहेल इमरान, वहीद खान। And the award goes to फैजान लाखानी। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जमे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का फख्र। 20 साल में पहली मरतबा इस तरह रिकग्निशन मिली है, तो थैंक यू पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड। और सबसे अच्छी बात फहद यहाँ पे ये कि अच्छा, पिछले साल भी जब नरगिस को अवार्ड मिला, इनाम भट्ट को अवार्ड मिला, तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में दूसरे एथलीट्स भी जो है, दूसरे स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं उनको भी अब रिकग्नाइज किया जा रहा है, उनको वो अहमियत दी जा रही है। हम बतौर जर्नलिस्ट कोशिश करते हैं कि इनकी कामयाबियां आप बताएं, अपनी रिपोर्ट्स में इनको मेंशन करें, जो अवार्ड्स जीतते हैं या मेडल्स लेके आते हैं, हम बतदरीज बताते रहते हैं। लेकिन कौम को मजीद रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और जिस तरह बात की रिस्पेक्ट स्वेट, तो हम सबको अब ये रियलाइज़ करना होगा कि इनाम भट्ट जैसा स्टार हमारे पास है, नदीम अरशद जैसा स्टार हमारे पास है, यहाँ पे आसिफ स्नूकर के बैठे, तो इन सबको भी अब रिकग्नाइज करना होगा। तो वेरी ग्रेट एफर्ट चाहिए हम तमाम स्टार्स के लिए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट स्पोर्ट्स शो ऑफ द ईयर। अवार्ड पेश करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा पाकिस्तान फुटबॉल के दो सुपरस्टार्स हाजरा खान और कलीमुल्लाह को। यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाजरा फुटबॉल की पाकिस्तान की कामयाब तरीन फुटबॉलर है, जबकि कलीमुल्लाह प्रोफेशनल फुटबॉल में 100 गोल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इन दोनों के लिए। प्लीज़ वेलकम हाजरा एंड कलीमुल्लाह। वेलकम वेलकम सर। बड़ा मैं ऑनेस्ट और सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, हम कभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, आपको लगता है ऐसा? चांस तो नहीं है। चांस नहीं है? चांस तो नहीं है, बिल्कुल। अरे झूठी बोल देता है आदमी है। नहीं, सच बात ये है कि हमारा जिस तरह फुटबॉल है, लोग बाहर जिस तरह अगर बाहर देखे जाएं, इंग्लैंड में देखा जाए, स्पेन में देखा जाए, तो वहाँ पे फुटबॉल को बहुत फैसिलिटीज़ दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कौमी सतह पे फुटबॉल को वो तरजीह नहीं दिया जाता है जो जिस तरह बाहर मुल्कों में। हमारा ग्रास रूट लेवल फुटबॉल ठीक नहीं है, जिस पे हम स्कूल चैम्पियनशिप, जिस तरह हमारा क्रिकेट के जो है
प्रॉपर तरीके से एकेडमीज़ हैं। अगर हमारा ये हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे आगे जा सकते हैं। अगर कौमी सतह पे इनको सहूलत दी जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान एशिया में टॉप पे कर लेंगे तो वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई कर सकते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। बड़ी मुश्किल होती है लड़कियों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, दैट टू इन फुटबॉल, जो कि इस रीजन में ऐसे जितना ज़्यादा खेला भी नहीं जाता। तो ये अचानक से ख्याल कैसे आया, वाई नॉट क्रिकेट, वाई फुटबॉल ऑल ऑफ सडन? समर टाइम होता है, स्कूल ऑफ होता है एंड एवरीथिंग। आई एम गोइंग थ्रू द पेपर्स एंड आई एम लुकिंग कि एक ट्राई आउट्स हैं सिंध टीम के, प्रोविंशियल टीम के ट्राई आउट्स हैं, एंड सो आई वेंट टू ट्राई आउट एंड द ओनली फुटबॉल आई हैड प्लेड वाज with the kids in my apartment compound, because I used to play basketball. वो एक wall पे chalk बना के they would put me against it, and because I played basketball I could catch the ball, so I was their keeper. Basically that's the sad truth of how I started playing, but then 2 months into playing football I was the top scorer and the rest is history. कौन है हमारे आज के स्पोर्ट्स शो होस्ट ऑफ द ईयर? आइए देखते हैं नॉमिनीज। स्पोर्ट्स शो होस्ट ऑफ द ईयर Abdul Ghaffar, Danish Anis, Haider Azhar, Mirza Iqbal Beg, Najib al-Hasnan, Savera Pasha, Yahya Hussaini. Savera Pasha. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जमे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौम का फख्र। मेरा ख्याल से मैंने और फहद ने डेब्यू साथ किया था, बट उसके बाद से ऑलमोस्ट कुछ साल बाद मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स इज़ समथिंग दैट आई लव, और बस 2011 से ये सफ़र शुरू हुआ मेरा, एंड आई एम एब्सोल्युटली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि एटलीस्ट इतने सालों बाद किसी ने रियलाइज़ किया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या बात। इस तारीखी महफिल में अवार्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली कैटेगरीज की जानिब बढ़ते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली बेस्ट एम्पायर पाकिस्तान के अलीम डार साहब। अलीम साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, फैसले तो आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट फील्ड पे सही दिए, सब रिव्यू ठीक रहे, उंगली भी सही उठी सही जगह पर। घर में फैसले कौन करता है सर? आप खुद करते हैं या फिर हमारी भाभी करती हैं फैसले? जी, घर में फैसले मेरे ही होते हैं। अच्छा, आपके हैं? जी, मेरे ही होते हैं भाई। क्या इमाम देख लो, कुछ चीज़ें बेहतर भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर वक्त तुम चेंज करना चाहो। सर आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और हमारा जो अगला अवार्ड है, किसी भी शोबे में कामयाबी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी मदद करें अपने क्राफ्ट को ठीक करने में, अपने सारे फ्लो को ठीक करने में, तो वो होते हैं कोचेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मेंटली भी सपोर्ट करते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखते हैं कि आज स्पोर्ट्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलता है। स्पोर्ट्स कोच ऑफ द ईयर मोहम्मद मसरूर, मोहम्मद वसीम, सेंसे गुलाम अली, ताहिर वहीद जट, तनवीर अहमद। अवार्ड गोज टू गुलाम अली। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड टीम को कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इसी तरह पिछले साल के नरगिस हज़ारा को इसी अवार्ड को नवाजा है, इस साल मुझे सिलेक्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, सो द स्पोर्ट्स कोच ऑफ द ईयर गुलाम अली हज़ारा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सो थोड़ा सा बताइए अपने सफ़र के बारे में। मैं 3 टाइम साउथ एशियन चैम्पियन भी रहा और तकरीबन 100 के करीब मैंने ब्लैक बेल्ट्स कराटे में तैयार किया। उसके अलावा तकरीबन 14-15 मैंने इंटरनेशनल
और 40 के करीब नेशनल लेवल तक मैंने अपना प्लेयर को ट्रेनिंग दिया और पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन मेरे पास 400 खिलाड़ी मौजूद है और 6 साल से 50 साल तक ये से खिलाड़ी ख़वातीन, इसमें से तकरीबन 250 लड़कियां और ख़वातीन हैं हमारे पास। और मैं अपना तरफ से और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड MM टीम को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वाकई स्पोर्ट्समैनों के लिए पूरा स्पोर्ट्स का आज यहाँ बुलाया, उनको अपना इनाम में नवाजा है। तो ये बताइए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है इस टाइम में? आपको पता है कि कोयटा में हालात इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका हालात के बावजूद हम लोग अपना स्पोर्ट्स अपना खेलों को वो निचोड़ रहे हैं। हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ग्रास लेवल से वहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हमने तैयार किया हुआ। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस तकरीब को मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के पहले ऑफिशियल तराने को पेश करने के लिए दावत दूंगा आसिम अज़हर, आयमा बेग और रामिस अली को। मैं साथ साथ ये भी आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि ये अपनी नौयत की एक ऐसी प्रोडक्शन है मैं हूँ सितारा, जो कि तमाम एथलीट्स का मोराल हाई करने के लिए बनाई गई है। तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस एंथम के लिए। सबसे पहले प्लीज़ वेलकम आसिम अज़हर, रामिस अली एंड आयमा बेग। मुश्किल में हम घबराते नहीं, नीयत कभी डगमगाती नहीं। आदत हुई इनकारों की वो फिर भी कभी सर झुकाए नहीं। था रब का जो इशारा मंजिल थी वही, फिर देखा न पलट के सह गया सभी। मैं वो सितारा जो टूटे ना कभी, मेरी मिट्टी ये पाक सरजमी, इसे पहचान मेरी चाबी कुर्बान। मैं सितारा अब माने सभी। अब जिस जगह हूँ आके खड़ा, जीतूं सभी पर हारूं कभी। उस हार से पर जो सीखे जीतेगा वही, और करके भी दिखाया सुन लो सभी। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम पे चांद और सितारा हो। सलाम सबको जो परचम की शान बने, खान का हौसला मैं वसीम की स्विंग हूँ, 92 का वर्ल्ड कप मैं चैंपियंस ट्रॉफी की विन हूँ। लाला और पिंडी एक्सप्रेस का जनून, जैसे बाबर की ड्राइव मैं सना मीर की स्पिन हूँ। इनाम बट मैं गुजरावाले की जान, अब्दुल खालिक का गोल्ड मेडल दुश्मन हैरान।
बैडमिंटन वेट लिफ्टिंग के मारे मैदान में माहूर मैं रबिया मैं औरत की पहचान हाँ टेकन और डॉटा वाले जाने वर्ल्ड वाइड अरसलान मैं सुमैलिस फुल की प्राइस आशा जो कायम जहांगीर खान की स्ट्रीट में जमशेद की गेम हूँ ऑलवेज ऑन पीक में ओलंपिक्स में पाकिस्तान में अरशद नदीम इसामुल हक में बदला टेनिस का सीन गवाह है दुनिया हॉकी को कैसे सर किया सुहेल और समी में हर दिल में घर किया मैं स्नूकर में भी कई साल मैं आसिफ मैं यूसुफ और मैं बिलाल फुटबॉल टॉप पे ले जाना मैंने ठान ली गली मुल्ला में हाजिरा खान भी हुसैन शाह में बॉक्सिंग रिंग का डॉन परवास फैल्कन वसीम जैसे रोकेगा कौन कबड्डी में दुश्मन का कर दिया हशर मैं सुपर हीरो एके कौन का फखर जो टूटे ना कभी मेरी मिट्टी ये पाक सरजमीन इसे पहचान मेरी जामी कुर्बान मैं सितारा अब माने सभी अब माने सभी जो टूटे ना कभी मेरी मिट्टी ये पाक सरजमीं इसे पहचान मेरी जावी कुर्बान मेरी मैं वो सितारा जो टूटे ना कभी मेरी मिट्टी पाक सरजमीं इसे पहचान मेरी जावी कुर्बान मैं सितारा अब माने सभी मैं वो सितारा सलाम सबको जो मुल्क की पहचान करे सलाम सबको जो मिट्टी की बात करे सलाम सबको जो परचम की शान करे सलाम सबको जो मुल्क की पहचान करे सलाम सबको जो मिट्टी की बात करे सलाम सबको जो परचम की शान करे सलाम सबको जो मुल्क की पहचान करे सलाम सबको जो परचम की शान करे थैंक यू। साथियों, क्या आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर एक इंसान ज़िंदगी कई ऐसे सबक सीखता है जो शायद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी नहीं सीख पाता। ऐसा एक सबक मिलकर चलने का है, टीम वर्क का, एक दूसरे का साथ देने का, एक हदफ के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का। ये सबक हमें बताता है कि हम मुत्तहिद रहें और मिलकर काम करें तो हमारा परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। इस परचम की सरबुलंदी के लिए मिलकर काम करने वालों को सेलिब्रेट करते हैं और अपने अगले अवार्ड देखते हैं। स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, सेंट्रल पंजाब, कराची किंग्स, पाकिस्तान कबड्डी टीम, सिंध अंडर 19, पाकिस्तान स्नूकर टीम, कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियंस। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो सलाम सबको जो परचम की शान बने मैं सुपर हीरो एके कौन का फखर हमारी अगली अवार्ड्स की कैटेगरी बहुत ही तूफ़ानी है और वो है खेल के मुख्तलिफ मैदानों में अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई करने वाले तूफ़ानी फैंस के लिए, जो हर एक मेंबर के लिए ऐसे चेयर करते हैं कि टीम मेंबर का ही एक दर्जा हासिल कर लेते हैं। अगर ये ना हो तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। मैदान से बाहर रहकर पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले ये तूफ़ानी स्पोर्ट्स फ़ैन को आज अवार्ड पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा द वन एंड ओनली आसिम अजहर एंड वेरी टैलेंटेड आयमा बे। लुकिंग शार्प, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप लोग, जितने पुराने सिंगर्स थे, आज के सिंगर्स थे? हाउ गुड आर यू, हाउ गुड वर दे? थोड़ा सा इलैबोरेट। ये आई रियली लाइक ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड से एकदम से जो ये नहीं चिट चैट पाकिस्तान म्यूजिक अवार्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करता हूँ
एंड आई रियली होप कि शायद जो यंग एथलीट्स हैं, जैसे हम यंग आर्टिस्ट हैं, वो शायद रिलेट करें इस बात से कि नोबडी इज़ परफेक्ट एंड परफेक्शन या प्रोफेशनलिज्म डजंट कम विद एज। बस मेरी कोशिश ये होती है कि अपने से पहले जिन लोगों को देखा उनकी जितनी से जितनी अच्छी चीज़ें वो अपना सकूं, और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल दैट। और अब बस थोड़ा ये है कि आजकल के टाइम में वी आर अ बिट मोर एक्सपेरिमेंटल, जैसे स्पोर्ट्स में भी डिफरेंट फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं। इसी तरह आई थिंक हमारे काम में भी until and unless you're not experimental, अंडर 16 क्रिकेट खेलने वाला लड़का अचानक से सिंगर भी बन जाता है, ये एक नया एक्सपेरिमेंट ये भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट तब होता है जब आप एक दिन अंडर 16 के ट्रायल से आते हो और नहीं सेलेक्ट होते, आपके वालिद साहब कहते हैं कि बेटा बस एक बात तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा जी अब्बू। कहते हैं 20 करोड़ की आवाम है और खेलना 11 ने तो इतना अच्छा होना चाहिए। उधर ही मेरा सब ख़त्म। मैंने कहा ओके थैंक यू। जो आपने सवाल किया था कि अपने सीनियर्स के साथ कैसा लगता है, आई थिंक द मोर रिस्पेक्ट यू गिव टू योर सीनियर्स, उतना ही लोग आपको ज़्यादा प्यार देते हैं अल्लाह की तरफ से। क्या बात? एक बहुत बड़ा बिलीव है मेरा इस चीज़ में, और बहुत कुछ लर्न किया अपने सीनियर से भी और लर्न करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारी जो कैटेगरी है वो है तूफानी स्पोर्ट्स फैन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज प्लीज। तूफानी स्पोर्ट्स फैन ऑफ द ईयर अब्दुल अहद नासिर, चाचा क्रिकेट, डेनिस, डिक्टेटर, मोमिन साकिब, मिस्टर पाकिस्तान, रिजला रेहान, सारिम अख्तर। And the award goes to Chacha क्रिकेट। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन है This time my age is 72 year, और मुझे ये फ़ख्र रहेगा कि मैं 52 साल से पाकिस्तान का ये परचम दुनिया के मैदानों में लहरा रहा हूँ और इंशाअल्लाह लहराता रहूँगा। मैं हर उस आदमी का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने इस परचम लहराने में मेरे साथ तावन किया। और एक शेर में कहने लगा, मिठे पानी दी नहर होवे, अल्लाह कोलों मंगे दुआ, सोने वतन दी खैर होवे, कोठे उत्ते कां बोले, दुनिया च गली गली मेरे वतन दा नाम बोले, जब तक सूरज चांद रहेगा प्यारा पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ। एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है ये, इसमें मेहनत और लगन के साथ साथ तवज्जो भी बहुत ज़्यादा दरकार है। मैं बात कर रहा हूँ ई स्पोर्ट्स की, जिसमें आपकी ज़हनी महारत का एक्चुअल इम्तिहान होता है। अवार्ड पेश करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम ज़ैनब अब्बास एंड सलमा मरवत खान। बहुत बहुत खुशामदीद आप दोनों को कहते हैं। जीप रैली, ये बहुत ही मुश्किल सी चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है। और उसके बाद एक औरत अगर जीप रैली में मौजूद हो तो इटसेल्फ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात हो जाती है। तो कैसे लड़कियां आ सकती हैं इस तरफ? जीप रैली क्या, मैं तो कहती हूँ हर स्पोर्ट्स ही मुश्किल है और डिफ़िकल्ट है और चैलेंजिंग है। तो अगर लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है तो जीप रैलीज भी कर सकती हैं। क्या बात है, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फास्टेस्ट लेडी ड्राइवर मतलब रेसर पाकिस्तान की मैं ही हूँ टाइटल अपने नाम कर लिया, ताकि लोग ये ना कहें कि औरतें जो हैं उनको ड्राइविंग नहीं आती। और तेज़ वाली भी आती है।
तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा ज़ैनब आपकी तरफ आते हैं। कमेंट्री होस्ट करना, क्रिकेट से रिलेटेड बड़े कम लोग हैं जो कि इस मुल्क में इस तरफ जाते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आते हैं। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने ये ट्रेंड चेंज किए हैं, तो और लड़कियां आपको नज़र आती हैं जो कि आना चाहती हैं इस तरफ, जो आप अचीव कर चुकी हैं ज़िंदगी में? I get really happy to see कि इस किस्म का रिस्पॉन्स हमें मिलता है, and I think the world is changing now. You know, you have women leaders around the world. मैं यहाँ पे देख रही हूँ हाई अचीवर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड मेरी एक्चुअली रियली जिसे कहते हैं ना, दिल से दुआ जाती है फॉर एवरीबडी हु इज़ वन एंड इज़ डूइंग वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हमें बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के, आप जिस तरीके से क्रिकेट को फॉलो करती हैं। और ई स्पोर्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, लेट्स सी क्या है नॉमिनेशंस। ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर अरसलान ऐश, आतिफ बट, हीरा मलिक, अवैस हनी, बिलाल इलियास। विनर है अरसलान। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जमे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का फख्र। इस अवार्ड से मुझे खुशी मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनली रिकग्नाइज़ किया जा रहा है ई स्पोर्ट्स को। और इस अवार्ड से मुझे लगता है कि और भी पाकिस्तान के नौजवान और ई स्पोर्ट्स में जो भी लोग गेम खेलते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज यहाँ बैठे हर शख्स ने अपनी फील्ड में कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया है। अवार्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तला अंजुम और तलहा यूनुस हमारे साथ हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक फाद भाई, आप सुनाएं। अब तुम और मैं अलग अलग बातें सुनाएंगे एक दूसरे को, फिर कभी जिंदगी में। नॉमिनेशंस देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। स्पोर्ट्स आइकॉन फीमेल किरण खान, मालिका नूर, मारिया तुर्पकाई वजीर, पलवशा बशीर, शबाना अख्तर। And the award goes to Kiran Khan. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जमे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का फख्र। I want to thank Pakistan Sports Award for nominating me. Every nomination is a part of appreciation. I want to congratulate all the nominees and all the winners. And I want to thank everyone who has voted for me and who has thought that I can be a sports icon for Pakistan. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स आइकॉन ऑफ द ईयर मेल, और इस अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूँगा शबाना अख्तर, मुनीज़े एंड समीना बेग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज प्लीज। स्पोर्ट्स आइकॉन मेल सलमान अकबर, उमर गुल, अलीम डार, मिर्जा अली बेग, जानशेर खान। Sports icon of the year would be Aleem Dar. सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब पर जमे चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का फख्र। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, अंपायर बन गया, और काफ़ी मैंने हर्डल्स देखी, और माशाल्लाह मेरा ख्याल है 140 साल के करीब हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट को शुरू हुए, और
इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस मेरे सुपरवाइज़ किए हुए हैं। मेरी जो लाइफ जब चेंज हुई अंपायरिंग में 2003 का वर्ल्ड कप था, वो इम्पोर्टेंट किस्म का वर्ल्ड कप था जहाँ मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई, जो अभी तक चल रही है। कि जब मैंने वर्ल्ड कप के लिए गया 3 दिन के बाद मेरी 7 महीने की बेटी की डेथ हो गई और मेरी फैमिली ने पूरा महीना मुझे नहीं बताया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। तो ये इजी नहीं था और लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करना, जो कि मैंने पेरेंट्स से वादा करके किया था। गुजरांवाला से लाहौर आया और अल्लाह का शुक्र है और आई फील प्राउड कि आई एम पाकिस्तानी। और जितने भी मेरे रिकॉर्ड हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, अपनी मैं फैमिली के नाम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी तालियां अलीम डार साहब के लिए। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स मूव ऑन जी। हमारा अगला सेगमेंट मैं बुलाना चाहूँगा ज़ैनब अब्बास साहिबा को स्टेज पर बुलाऊंगा कैप्टन स्टॉक के लिए। ज़ैनब अब्बास। It's been a wonderful evening so far. Some really deserving winners, and I'm seeing some happy faces here. So I'm happy to see that. But I think कि awards की I think जो सबसे important हिस्सा, at least for me, is the recognition that we have been giving to female athletes and women that are involved in the field of sports. So I think it's only fair to talk about women leaders that are sitting here today that have really left a mark. So I'd like to call upon stage Hajra Khan, Mahoor Shehzad, निगत कौसर एंड अफशा नौरीन। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो for all your achievements. हाजरा, I'd like to start with you. सबसे मुश्किल चीज़ आपके लिए क्या रही थी? We're all told that football is a male-dominant sport, and it's very, it's almost the number 1, number 2 contact sport. It's a rough sport. You're gonna get tan, kuch haddiyan toot jayenge, and all that stuff. And I just figured that I had to prove everybody wrong that women are not fragile. Not just football. We have motocross. We have all sports here. So I feel like this event kind of proves that women are anything but fragile. That's what's driven me so far. Mahoor, even with you, we're talking about changing perceptions and we're talking about breaking stereotypes. I mean, आपके साथ भी कुछ ऐसा था, कोई शुरू में initial resentment और reactions कि ये इस फील्ड में क्यों जा रही है, ये स्पोर्ट्स क्यों खेल रही है? अगर हर्डल्स की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा हर्डल मैंने फेस किया है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स का तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। और अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात की जाए कराची में तो सिर्फ एक नेशनल कोचिंग सेंटर है। उसके बाद अगर आप खेलना चाहें तो आपको अपने ओन पे प्राइवेट क्लब्स में खेलना पड़ता है, और प्राइवेट क्लब्स में ये इशू होता है कि आप ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते क्योंकि और मेंबर्स ने भी खेलना होता है, तो मुश्किल से आपको 1 घंटा मिलता है, और फिर कोचेस भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो सबसे मुश्किल यही मेरे लिए हुआ है कि किस तरह से मैं अपने कोचेस को पकड़ूं, किस तरह से मैं कोच ढूंढूं ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूं। निगत, यू एंड अफशा हैव चोजन यूनिक स्पोर्ट्स उस लिहाज से, क्या यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, फैसिलिटीज़, वो एक जो सपोर्ट होता है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं उस घर से निकली हूँ जहाँ पे आसपास सारे लोग कहते थे कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मेरे जो बाबा हैं वो मेरे साथ खड़े हुए। वो पाकिस्तान की तरफ से बॉक्सिंग खेलते थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर मैं वहाँ से निकली और मैंने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मेडल्स लेके आई काफ़ी सारे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की के लिए जो सबसे ज़्यादा बोल्ड स्टेप उठा सकता है वो उसका बाप कर सकता है, और एक लड़की को जो बाप की तरफ से दिया हुआ कॉन्फिडेंस होता है वो कभी भी वो लड़की नहीं गिर सकती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लड़कियां पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि अवार्ड्स में लड़कों के बराबर हैं और अवार्ड रिसीव कर रही हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है।
और यहाँ पे आके सबसे मिल के जान के कि सबकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान में लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much for being, the global ambassadors of the game in your respective fields. Keep up the great work, and I think I'm really happy. I agree with you. बड़ी देर बाद मुझे ज़्यादा लड़कियाँ नज़र आ रही हैं. So congratulations to all of you, and well deserved. सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं एक ऐसे एथलीट की जानिब जो खेलों के साथ साथ अपनी स्टाइलिश शख्सियत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए. एथलीट जिन्होंने अपनी इमेज को काबिल तहसीन अंदाज में पेश किया और ये बताया कि स्पोर्ट्समैन भी किसी से कम नहीं है. इसलिए मैं दावत देना चाहूँगा आज यहाँ पर सबसे पहले शमल कुरैशी और घाना अली को, और अवार्ड कैटेगरी है मोस्ट स्टाइलिश एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल. आइए सर देखते हैं नॉमिनेशंस. Most stylish athlete of the year, Essam ul Haq, Hajra Khan, Mohammad Hafiz, Imad Wasim, Kainat Imtiaz, Salma Marwat Khan. Before we give the award out, I just want to say that the team at Tony and Guy and myself are really, really honored to be part of the styling sponsors. Over the years, I've had the pleasure to meet many sports people of Pakistan and all, and not only are they amazing at what they do, but they're also really, really great people. So I am humbled today. Aap log Pakistan ki shaan hai, and I'm humbled to be giving out the award. So the most stylish female athlete of the year is Hajra Khan. So let's see. Most stylish athlete of the year, male. Essam ul Haq. I feel like no categories matter tonight because everybody here is a champion. Everybody here is representing the country. Everybody here has, worked hard through and through for years. And just because Essam and I do it with style, you guys should up your games too. First of all, I would just like to thank Tony and Guy also. And obviously Pakistan Sports Awards for nominating. I think sports and style, I think, goes hand in hand. And you should know it also. Acting and presenting and style goes in front. Thank you everyone. And once again, thank you Pakistan Sports Awards. Thank you Essam. Thank you Hajra. God bless you. नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड. खेल के मैदान में पाकिस्तानी मर्द एथलीट्स के बेहतरीन कारनामों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा आयशा जंजुआ और एहसाम उल हक को. जी, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज प्लीज. Sportsman of the Year, Arshad Nadeem, Babar Azam, Falcon Wasim, Muhammad Asif, Sadi Abbas, Shah Hussain Shah, Ulumi Kareem. One of my personal favorites, none other than Falcon Wasim.
सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौन का फखर। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और फात भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड का, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त इवेंट कराई और इससे एथलीट्स को काफ़ी मोटिवेशन होती है और उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतरी आती है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अवार्ड जीतते जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं और पहले से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहीं। इसीलिए स्पोर्ट्स वुमेन का जो इस दफ़ा कैटेगरी है, इसमें 9 लोग कम्पीट कर रहे हैं और हर एक अपने अपने हिसाब से मिसाली है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जिस अंदाज़ में महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी ख़वातीन स्पोर्ट्स के मैदानों में आगे बढ़ रही हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना ही चाहिए। मैं दावत देना चाहूँगा इस वक्त पाकिस्तान के कामयाब रेसलर इनाम भट्ट साहब और फैल्कम वसीम को बहुत सारी तालियां होनी चाहिए टू प्रेजेंट दिस अवार्ड। आइए देखते हैं कि क्या हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की नॉमिनीज। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अनीता करीम, बिस्मा मारूफ, कुलसूम हजारा, माहूर शहजाद, नजमा परवीन, नरगिस हजारा, निदा डार, राबिया शहजाद, सलमा मरवत। And the award goes to Anita Kareem. Me and my team fight fortress thanks to Sports Award and for the sport and for the award, and of course my brothers Ali Sultan, Ehtisham Kareem, and my Bayaji is there, Ulumi Kareem, and my parents. Thank you so much. God bless you. Congratulations. Yeah, so the sports woman of the year, Anita Kareem. Anita, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। MMA, you know, MMA is something which is quite unique and unconventional in terms of a choice of career for women. But it's great to see that someone like you has come forward, who's breaking those norms and those stereotypes. So, I mean, आपका ये interest कैसे develop हुआ? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि बचपन से यही होता है कि एक लड़की की बस एक ही ख्वाहिश होती है, पढ़ाई और शादी। मैंने इस चीज़ से हट के करना था। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, भाइयों का सपोर्ट मिला और मैंने अपने घर से ही स्टार्टिंग ली। मैंने अपने घर से मिक्स मार्शल आर्ट्स ये कि दुनिया में सबसे मुश्किल खेल में समझा जाता है और पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल फाइटर जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हूँ। और स्टार्टिंग मैंने अपने भाइयों के साथ ही की और मैंने एक्सपीरियंस अपने पापा के ऊपर किए थे। यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो सारा काम था वो डैड पर था। So I mean, it's great to see that you've got supportive men in your family as well. You know, the kind who really supported you. Now I've spoken about this throughout today, but आपका experience इस लिहाज से अच्छा रहा है family support wise? फैमिली सपोर्ट वाइज बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया मेरे ट्रेनिंग के टाइम। भाइयों को काफ़ी तंग किया क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में एक रूल होता है कि आपने शॉर्ट्स पहन के मतलब खेलनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ें नोट करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब चोट पड़ती है, तो वो उन चीज़ों से आपको पॉइंट्स वगैरह वो आपको मिलती है। तो वो चीज़ें जो थी भाइयों को बहुत सुननी पड़ी क्योंकि आपने शॉर्ट्स पहना के अपनी बहन को मतलब खेल वो किया है, तो और मेरी अम्मी को ज़्यादा अपने भाइयों से सुननी पड़ी। डेफिनेटली वो तो फिर ऑब्वियसली सुननी तो पड़ती है, बट एट लास्ट मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। बिल्कुल, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट मैसेज टू टेक आउट फ्रॉम टुडेज शो ओवरऑल एज वेल, दैट स्काई इज द लिमिट एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।
मूविंग ऑन जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तारीख में ऊंचा नाम रखने वाले, उनकी वजह से हमारे सर बुलंद हुए फ़ख्र से। आज हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर दावत दूंगा द वन एंड ओनली वहाब रियाज एंड इमामुल हक, लेडीज एंड जेंटलमैन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब्दुल खालिक। 50 की दिहाई में ट्रैक एंड फील्ड पर राज करने वाले अब्दुल खालिक 2 मर्तबा एशिया के तेज तरीन इंसान बने। 1954 में उन्होंने 100 मीटर दौड़ 10.6 सेकंड्स में जीतकर भारत के लैवी पिंटो का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्हें भारत के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब दिया। मिल्खा सिंह भी हमेशा अब्दुल खालिक के मद्दाह रहे। पाकिस्तान के लिए 36 गोल्ड, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अब्दुल खालिक आज उज़ैरुल रहमान, मोईद बलोच, नजमा परवीन और साहिब असरा जैसे कई एथलीट्स के लिए एक मशअले राह हैं। और मैं इनवाइट करूंगा साहिब असरा को कि वो आए और प्लीज उनका अवार्ड। सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब परचम में चांद और सितारा हो, सलाम सबको जो परचम की शान बने। मैं सुपर हीरो AKA कौम का फख्र। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंकफुल हूँ पाकिस्तान अवार्ड शो की कि उन्होंने फ़र्स्ट टाइम अब्दुल खालिक को नॉमिनेट किया। वो हमारी इंस्पायरेशन है और हमारे लेजेंड है। आई विश कि मैं भी उनकी तरह एशिया में मेडल ला सकूँ। थैंक यू सो मच। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम तमाम एथलीट्स को हमेशा सलाम पेश करें, उन्हें वो इज़्ज़त दें, वो मान दें जिनके वो हकदार हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ा हर वो शख्स जो कि आज इस महफिल में मौजूद है, हमारी नज़र में एक चैम्पियन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आखिर में पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड के बानी और CEO अमीनुल हक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अमीनुल हक साहब, बहुत सारी तालियां चाहिए अमीनुल हक साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरे लिए आज एक बार फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स का इनेकाद एक ऐसा मौका है जिस पर मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। क्रिकेट से मुंसलिक हूँ, स्पोर्ट्स एजेंट हूँ। क्रिकेट की फील्ड्स पे अक्सर ये सोचा है कि उसके अलावा पाकिस्तान में कितने स्पोर्ट्स के शोबे हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिलती उस लेवल पे जिस तरह क्रिकेट को मिलती है। क्रिकेट एक ज़बरदस्त खेल है, हमको जोड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अपने इंडिविजुअलाइज फैंस हैं। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे क्रिकेट समेत सारे दीगर और स्पोर्ट्स के शोबे और एथलीट्स और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जैसे कमेंटेटर वो आ सकें। हमारी टीम ने जब इस ख्वाब को सोचा आज से कुछ 2 साल पहले, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस पर साथ दिया। शोएब मलिक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सलमान इकबाल साहब एंड हमारी टीम एजेंट हक की। मुझे ये खुशी है आज सबको देख के यहाँ पे कि स्पोर्ट्स के हर डिफरेंट शोबे से और हर डिफरेंट स्पोर्ट्स से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा हमारी मीडिया से कि वो जितनी तरजीह क्रिकेट को देते हैं वो ज़रूर कम ना करें, लेकिन ये एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर स्पोर्ट्स को एक शेयर ऑफ वॉइस दें। हमारे 2019 में जितने वर्ल्ड टाइटल्स नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अगर आप मीडिया में देखें तो शेयर ऑफ वॉइस नहीं बढ़ा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मिलके काम करना है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर राय तैमूर भट्टी साहब का, जिनके ताउन के बगैर ये इवेंट और यहाँ तक की जर्नी भी पॉसिबल नहीं होती। ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गेटोरेड पाकिस्तान टीम का और गेटोरेड एज ए ग्लोबल ब्रांड जो कि दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स ड्रिंक है। और ये बहुत वाज़ेह है कि वो नंबर 1 सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड्स के, बिकॉज जिस तरीके से भरपूर तरीके से उन्होंने कोविड-19 को सारे मद्देनज़र रखते हुए एंड ऑल द रिस्ट्रिक्शंस साथ दिया, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। आई होप देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स Gatorade can also work with and establish sports more stronger.
बात ख़त्म करूंगा कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी हमेशा तरक्की हासिल करें और हम यूं ही हर साल उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के लिए मिलें और उनकी हिमायत करें। थैंक यू सो मच, रियली रियली अप्रिशिएट इट। क्योंकि ये वो आज का शो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं चाहूँगा एक बार फिर हम भरपूर तालियां अपने एथलीट्स के लिए बजाएं, क्योंकि ये वो शो है जो इनको एक्नॉलेज करने के लिए है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स अवार्ड हमेशा की तरह आगे भी इसी तरह लोगों को एक्नॉलेज करता रहेगा और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को मज़ीद फ़रोग़ देता रहेगा। सी यू नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्रिकेट का मैदान हो या कबड्डी का अखाड़ा, हॉकी के गोल हो या फुटबॉल का जोश, भागने की फुर्ती हो या कबड्डी की महारत, ये सब खेल भी तो हमारे हैं। इनाम भट्ट हो या मोहम्मद वसीम, पलवशा बशीर हो या नसीम हमीद, ये सब खिलाड़ी भी तो हमारे हैं। कासी चांदी या फिर सोना, सब तमगे भी तो हमारे हैं। ये जहाँ भी खेलें और जो भी खेलें, हम सब पाकिस्तान के हैं। हमारा मान हमारी शान, ये वतन और इसके जवान। पाकिस्तानी तुझे सलाम।